میرے والد کی ملازمت ایبٹ آباد میں تھی۔ یہ علاقہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے یہاں ایک پلاٹ خرید لیا۔ کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر یہیں بناؤں گا۔ والد صاحب نے کسی سبب وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنا خواب بھی پورا کیا۔ انہوں نے ایبٹ آباد میں گھر بنوایا اور قریبی بازار میں ایک دکان بھی خرید لی۔ ابا جان نے محنت کی تو بزنس نے ترقی کی اور دکان جنرل اسٹور میں تبدیل ہو گئی۔ اسی بزنس سے ہم خوشحال ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گئے تو اسٹور میرے بھائیوں ارسلان اور ذیشان نے سنبھال لیا۔ دونوں باری باری جنرل اسٹور پر بیٹھتے تھے۔ ذیشان کو گھر میں سبھی پیار سے رانجھا بلاتے تھے۔ اس کو بھی عادت پڑ گئی۔ جب بھی کوئی نام پوچھتا تو وہ فوراً ہی اپنا نام رانجھا بتا دیتا۔ آخر اسی نام نے ایک دن اس سے اس کی خوشیاں چھین لی۔ اس کو ایک لڑکی ملی جس کے فراق میں اسے ایسی چپ لگی کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہا۔ وہ اپنی بھولی بھولی آنکھوں سے ہر کسی کے چہرے کو تکتا رہتا یا پھر کسی ویرانے میں درخت کے نیچے جا بیٹھتا اور پتے گنتا رہتا۔ رانجھے کی عمر 20 برس تھی۔ اس کو اپنی دکان سے بڑا پیار تھا۔ جمعے کے دن بھی وہ دکان کھول کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن جانے کیا اس کے جی میں سمائی کہ اسٹور بڑے بھائی کو سونپ کر نمائش دیکھنے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کو لڑکیوں کا ایک گروپ آتا دکھائی دیا۔ وہ شاپنگ کرنے نکلی تھیں اور ہمارے جنرل اسٹور کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ رانجھا واپس پلٹا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے بھائی پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ یہ 3 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت نمایاں تھی۔ اس نے کچھ چیزیں دیکھی اور مختصر سی خریداری کر کے یہ چلی گئیں، لیکن وہ لڑکی پل بھر میں ہی جیسے میرے بھائی کے دل پر گھاؤ ڈال گئی۔ رانجھا نے دوبارہ دکان بھائی کے حوالے کی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ جس دکان پر جاتی یہ اس کے پیچھے جاتا۔ اس کا جی چاہا کہ لڑکی کو روک کر اس کا نام پوچھے، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ بازار میں بات کرتا۔ آخر کار اسے بہانے سے روک کر کہہ ہی دیا کہ آپ میری دکان پر یہ پرفیوم بھول کر آ گئی تھی، یہ لیجئے۔ اس نے مسکرا کر پرفیوم رکھ لیا، حالانکہ وہ پرفیوم کی شیشی جو اس نے خریدی تھی وہ اس کی شاپنگ بیگ میں موجود تھی۔ رانجھے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دکان جانے کے بجائے گھر آ گیا۔ ساری رات بے چینی سے گزری۔ اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتا اس پری چہرہ کا مکھڑا سامنے آ جاتا۔ صبح دکان کھولی تو فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر کوئی لڑکی تھی۔ بھائی نے پوچھا آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کل آپ کی دکان پر شاپنگ کی تھی۔ آپ نے ایک فاضل پرفیوم کی شیشی مجھے دے دی، جبکہ خریدی ہوئی تو میرے بیگ میں موجود تھی۔ اب ایک واپس کرنی ہے۔ میں یہاں اسکول ہاسٹل میں ہوں۔ آپ آ کر اپنی امانت واپس لے جائیے۔ وہ شام کو اس کے ہاسٹل گیا، پرفیوم نہ لیا بلکہ اصرار کر کے اسی کو دے دیا۔ البتہ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد فون پر باقاعدگی سے باتیں ہونے لگیں۔ اس لڑکی نے جب بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے سادگی سے رانجھا بتا دیا۔ لڑکی نام سن کر ہنس پڑی۔ میرے بھائی نے بھی سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ بولی اگر تمہارا نام رانجھا ہے تو میرا نام ہیر سمجھ لو۔ رانجھا اور ہیر آپس میں ملتے نہیں تھے، البتہ فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے اسے لینے آ رہے ہیں کیونکہ سالانہ امتحان کے پرچے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ اب ہاسٹل سے چلی جائے گی۔ رانجھا یہ سن کر اداس ہو گیا۔ اگلے دن وہ دکان پر خدا حافظ کہنے آئی۔ اس کو اپنی بہنوں کے لیے کچھ چیزیں بھی خریدنی تھی۔ بھائی کو اداس دیکھ کر ہیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہیر اس لیے لکھ رہی ہوں کہ اس نے رانجھا کو اپنا اصل نام ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ وہ چلی گئی تو میرے بھائی کا دل بھی دکان پہ نہ لگا اور وہ بھی گھر آ گیا۔ راستے میں اسے بڑا بھائی ملا، پوچھا رانجھے کدھر جا رہے ہو اور دکان کس پر چھوڑ کر آ گئے ہو؟ بھائی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دکان بند کر کے گھر جا رہا ہوں۔ رانجھا کو پتہ نہ چلا کہ اپنی سوچوں میں مگن وہ گھر سے کافی آگے نکل آیا ہے۔ لیکن تم تو گھر سے کافی آگے نکل آئے ہو۔ اچھا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ بے خودی کی وہ کیفیت تھی جس پر اس کا اختیار نہ تھا۔ اگرچہ اس کی محبت صاف ستھری تھی مگر آج دل کی عجیب کیفیت تھی۔ آج سارا ماحول اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں نے کھانے کا پوچھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔
अम्मी ने बेटे की ये हालत देखी तो उनकी चीख निकल गई। माँ की चीख पर घर वाले दौड़े आए। वालिद साहब ने पूछा, क्या बात है? रांझा ने कहा, सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है। वो फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया लेकिन कोई बीमारी ना जान सका। बीमारी तो कोई ना थी, मगर ये ऐसा मर्ज था कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। रांझा को फिर भी डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया। वो अस्पताल से भी भागकर घर आ गया क्योंकि हीर की याद इसको अंदर ही अंदर खा रही थी। फोन का इंतजार था, तभी दुकान पर आ बैठा। दिल को दिल से राह होती है। दुकान पर आए थोड़ी देर गुजरी थी कि उसका फोन आ गया। वो कह रही थी, जब से घर आई हूँ दिल नहीं लगता, तुम्हारी याद ने मुझे बहुत अफसुर्दा कर रखा है। मैं इस उदासी से निकल ही नहीं पा रही हूँ। खाने को जी करता है और ना कुछ करने को। खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, लगता है मर जाऊंगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने रांझा को जगह बताई। वो जगह एबटाबाद से 100 किलोमीटर दूर थी। रांझा अगले दिन वहां पहुंचा। आध घंटे के इंतजार के बाद वो आती दिखाई दी। अपनी एक सहेली के साथ आ रही थी। आते ही कहा, रांझा, जानती ना थी कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बस गई है। अब तुम्हारे बगैर जी ना सकूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। उसकी बेबाकी पर रांझा मुंह तकता रह गया। किस सोच में खो गए हो? क्या तुमको मैं पसंद नहीं? ये बात नहीं है। पहले तो तुम्हारे घर वालों से बात करना होगी। वो राजी होंगे तो मैं अपने घर वालों से भी बात करूंगा, लेकिन मुझे तो डर है कि मेरे घर वाले भी राजी ना होंगे। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि सामने से कुछ लड़के आ गए और उनके पास आकर खड़े हो गए। हीर इनको देखकर घबरा गई। उसके मुंह से निकला, भाईजान आप यहाँ? उनमें से एक इसका भाई था। लड़की के भाई ने बहन को चले जाने को कहा। जाहिर है वो इनकार न कर सकती थी। वो दोनों चली गईं। दरअसल जहाँ रांझा और हीर बैठे थे वो जगह एक सैरगाह थी और वो इस लड़की के घर से नजदीक थी। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया हुआ था। वो रांझा से 3-4 साल बड़ा था। उसके तीनों दोस्त भी मेरे भाई से उम्र में बड़े थे। भागने का मौका था, लेकिन मेरे भाई ने भाग जाने को मुनासिब न समझा। हीर के भाई ने रांझा को घूंसा मारा और फिर उसके दोस्त भी इस पर पल पड़े। वो अकेला था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। किस्मत अच्छी थी कि वहां सब लोग जमा हो गए, जिन्होंने इन चारों हमला आवरों को काबू कर लिया। रांझा तेजी से हजूम से निकलकर बस के अड्डे आया। बस तैयार खड़ी थी। वो उसमें सवार होकर अपने शहर रवाना हो गया। उन्होंने पीछा भी किया, मगर बस निकल चुकी थी। रांझा को अब अपनी फिक्र न थी। बस यही अंदेशा था कि ये हीर को मार डालेंगे या उस पर कड़ी पाबंदियां लगा देंगे और फिर जल्द से जल्द कहीं शादी कर देंगे। उन्हीं सोचों में सफर का पता भी न चला कि कैसे खत्म हो गया। घर पहुंचा तो अपना होश न था। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा ये तेरी क्या हालत है? किसी ने मार पीट दिया है? तब उसे अपना होश आया। खुद पर नजर डाली तो कपड़े फट गए थे। घूंसे खाने से मुंह सूज गया था। आईना देखकर सख्त शर्मिंदगी हुई। माँ को किसी तरह टाला। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में झाँक घुसा और कुंडी लगा ली। तमाम रात इसी फिक्र ने सोने न दिया। बदन दुख रहा था। सुबह दुकान पर भी न जा सका। 10 दिन रांझा ने इसी फिक्र में गुजारे कि कहीं उसको उसके भाइयों ने मार न दिया हो। वो यही बात सोच सोच कर पागल हो रहा था। उसको खबर होती कि वो उस लड़की से मिलकर ऐसा बेगाना हो जाएगा तो कभी उसके पीछे ना जाता। शायद ये बात इसके इख्तियार से बाहर थी। वो जिंदा था मगर मुर्दा जैसा था। किसी से बात करने को दिल करता था और न दुकानदारी को। अगर सौदा लेने वाले सीधी बात करते तो भी इसको बुरा लगता। वो अब हीर के फोन के इंतजार में ही दुकान पर जाता था। कुछ दिन फोन की घंटी खामोश रही। रांझा की सांस भी घुटी घुटी रही। वो मायूस हो चला था। उसको उसके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि खुदा जाने लड़की के भाई ने उसके साथ क्या सलूक किया है। उसको उसके सवाल का जवाब देने वाला भी कोई न था। एक दिन फिर से फोन की घंटी बजी। ये हीर का फोन था। आवाज सुनकर बेख्तियार रांझा के मुंह से निकला, हीर अब तो अपना सही नाम बता दो। क्या तुम जिंदा हो? या बता दूंगी जब तुम अपना असल नाम बताओगे। और क्या तुमको मेरे मर जाने का यकीन था? नहीं, लेकिन उलझन में हूँ कि घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया।
भाइयों ने मिलकर खूब मारा और फिर कमरे में 10 रोज तक बंद रखा। आज एक कजन की मंगनी है, सब घर वालों के साथ मैं कजन के घर आई हूँ और यहाँ से छुपकर फोन कर रही हूँ। 1 माह बाद मेरी शादी है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 1 माह है हमारे पास, हम शादी कर सकते हैं, मगर ऐसी शादी में तो घर वालों की रुसवाई है। तुम सब्र से काम लो, रांझा ने उसे समझाया। तो फिर तुम कर लो सब्र, इसके बाद सारी जिंदगी सब्र से काम लेना होगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रांझा पहले से ज्यादा परेशान हो गया। उसी वक्त दुकान बंद की और घर आ गया। सोच रहा था कि वक्त कम है, घर वालों से भी बात नहीं कर सकता। लाखों का कारोबार था, वो अलग खत्म हो रहा था। वो दुकानदारों से भी गाफिल हो रहा था। उसको खबर थी कि लड़की के घर वाले कजा खुद इसके घर वाले भी राजी ना होंगे। बड़ा भाई किसी जरूरी काम से पेशावर गया हुआ था। रांझा ने 8 दिन दुकान न खोली, खराबी तबीयत का बहाना किए रखा। 9वें दिन वालिद साहब के इसरार पर दुकान खोली तो फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। रिसीवर उठाया। हीर बोली, 3 दिन से मुसलसल फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? तबीयत तो ठीक है? मैं बीमार था, रांझा ने बताया। बीमार तो मैं भी हूँ, मगर इसका कोई इलाज नहीं है। तुम कल 2 बजे फला जगह आ जाना, मैं तुमको अपने घरेलू हालात से आगाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर हीर ने फोन रख दिया और वो रिसीवर कान से लगाए सोचता ही रह गया कि क्या करूं। उसको रात भर नींद न आई। उस रोज की मुलाकात याद थी, अच्छी दुर्गत बनी थी। दोबारा जाने का हौसला न पड़ता था। खुद को बहुत रोका, मगर इस राह पुरखतर राह की तरफ खुद ब खुद कदम उठते जाते थे। उसकी बताई हुई जगह जा पहुंचा। 3 घंटे बाद वो आती दिखाई दी। आज वो अकेली थी, हाथ में थैला पकड़ रखा था। पूछा, ये क्या है? ये मेरे कपड़े हैं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझको साथ ले जाना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ सामने पहाड़ पर से छलांग लगा दूंगी। उसके कदम अब भी मन मन भर के हो रहे थे, लेकिन लड़की दलेर थी, उसका बाजू पकड़े थी। रांझा, क्या सोच रहे हो? चलो उठो, वक्त कम है। मेरे घर वाले मुझको तलाश करते होंगे, वो यहाँ आ गए तो हम दोनों को मार देंगे। रांझा बादल नख्वास्ता उठ खड़ा हुआ। वो उसके साथ कदम बढ़ाने लगा। जाते तो कहाँ जाते, बस स्टैंड पर आकर खड़े हो गए, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 1 घंटा गुजर गया, कोई गाड़ी न मिली। रांझा गुमसुम था, जैसे अंधा, गूंगा और बहरा हो गया हो। हीर की आवाज भी इसको सुनाई न दे रही थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, वो सामने देखो, नशेबी रास्ते पर मेरे भाई और उसके साथ न जाने कौन कौन लोग आ रहे हैं। भाग जाओ रांझा, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता, मर जाऊंगा, मगर तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिरकार वो चौंका। नहीं नहीं, देखो, वो 1-2 नहीं, 10-15 आदमी हैं और उनके हाथ में असलहा भी है। वो इसी इरादे से आ रहे हैं कि हमको जान से मार देंगे। हम दोनों का अब तुम्हारे भाई के हाथों मर जाना ही बेहतर है। लेकिन हीर मरने के लिए तैयार ना थी। उसने खुदा और रसूल की कस्में देकर कहा कि ये बैग ले लो, इसको आगे जाकर कहीं नाले में फेंक देना। मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती, क्योंकि मैं तेज नहीं भाग सकूंगी और मेरी वजह से तुम भी पकड़े जाओगे। वो यहाँ आते ही मुझसे उलझ जाएंगे, उतनी देर में तुम्हें निकल भागने का मौका मिल जाएगा। मजबूर होकर रांझा ने उसका बैग थामा और मुखालिफ सिमत में भाग खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ों की ओट में नजरों से ओझल हो चुका था। तभी वो तमाम हीर के सर पर आ पहुंचे, जिसने खुद को एक पत्थर पर गिरा लिया था और अब बेहोश पड़ी थी। रांझा भागते भागते जंगल में पहुंच गया। ये सर्दियों के दिन थे, शाम करीब थी। खौफ की वजह से इसको वहीं पड़ाव करना पड़ा। साथ कोई चादर थी और न खाने पीने का सामान। हीर के कपड़ों का थैला तो उसने रास्ते में नाले के तंदो तेज पानी के सुपुर्द कर दिया था। नजदीक कोई बस्ती भी न थी। हर तरफ से मायूस होकर उसने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे, जो इतनी सर्दी के बावजूद वो बच गया। काली लंबी रात जूतों करके गुजर गई, मगर ये रात क़यामत से बढ़कर लंबी थी। सुबह पोपटते ही वो दरख्त से उतरा और रवाना हो गया। रास्ते का पता न था, कोई जानने वाला न था, बस खुद को किस्मत पर छोड़ दिया। जिस रास्ते से आया था वो भूल चुका था। घंटा भर यूं ही चलता गया। बिलाखिर सामने से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा था। रांझा ने उससे बड़ी सड़क के बारे में पूछा। वो कोई नेकदिल इंसान था। कहने लगा, सड़क तो बहुत दूर है, तुम रास्ता भूल जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो रांझा के साथ हो गया।
काफी देर के बाद वो बड़ी सड़क पर पहुंच गए। रांझा ने उसको कुछ रकम दी कि वो बहुत गरीब था। उसने इतना वक्त भी रांझा की खातिर खराब किया था। रांझा वहां किसी सवारी के इंतजार में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। वो गाड़ी में बैठकर घर आ गया। घर वालों ने पूछा कहाँ चले गए थे और ये कैसी हालत बना रखी है। एक दोस्त के पास चला गया था, वो बीमार था। उसने रात मुझको अपने साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। रांझा ने हमसे बहाना किया और अपने बिस्तर पे गिरा तो होश ही ना रहा, क्योंकि रात भर सर्दी में दरख्त पर बैठे रहने से हालत खराब हो चुकी थी। अगले दिन उठा तो हालत कुछ बेहतर थी। शुक्राने के निफिल पड़े कि अल्लाह पाक ने इज्जत और जिंदगी दोनों रख ली थी, मगर अब फिक्र थी तो हीर की। उसको यकीन हो गया कि इसको तो इसके भाइयों ने अगले जहान पहुंचा दिया होगा। उसके बाद वालिद साहब की अदालत देखते हुए उसको एहसास हुआ तो वो बिला नागा दुकान पर बैठने लगा। अब भी फोन की घंटी पर दिल धड़क उठता था कि शायद हीर का फोन हो, मगर उसका फोन न आया। खुदा जाने उस पर क्या बीती थी। 2 माह यूं ही गुजर गए। जब फोन की घंटी बजती उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। दिन यूं ही गुजरते गए। उस लड़की का कुछ पता न चला। हालत ये थी कि रांझा सुबह मुश्किल से ही दुकान पर जा पाता और शाम को घर आ जाता। वो दुकान पर जाता ही यही उम्मीद लेकर कि शायद आज हीर का फोन आ जाए, वरना इसमें तो अब चलने की भी हिम्मत न रही थी। एक दिन फोन की घंटी बजी। रांझा ने फोन उठाया। एक लड़की बोल रही थी। उसने पूछा कि रांझा है? मैं बोल रहा हूँ, भाई ने जवाब दिया। मैं सनोबर की सहेली बोल रही हूँ। रांझा, आपको ये बताना था कि मेरी दोस्त और आपकी हीर अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर रांझा की आंखों तले अंधेरा छा गया। मैं सही कह रही हूँ। आपको याद होगा जब पहली बार उसने आपको मिलने के लिए सैरगाह में बुलाया था तो मैं साथ थी। सनोबर ने मुझे आपका नंबर दिया हुआ था, कहा था अगर कभी भी मुझे कुछ हो जाए तो रांझा को बता देना। फिर उस दिन इसको इसके भाई घर नहीं लाए थे, बल्कि वहीं बेहोशी में ही उसका गला दबाकर पहाड़ के ऊपर से नाले में फेंक दिया था। उन्होंने उसके कदमों के निशानात के साथ साथ किसी और के कदमों के निशान भी देखे थे। उसका एक भाई दुकान पर तुमको देखने भी आया था, तो इस वक्त तुम्हारा भाई दुकान पर मौजूद था। वो यही समझे कि तुम दुकान पर मौजूद हो और उनकी बस्ती में नहीं आए, कोई दूसरा आया है। उसने जाकर यही कहा कि जिस पर तुम लोग शक कर रहे हो वो तो अपनी दुकान पर बैठा है, शायद वो किसी और के साथ गई थी। खुदा ने तुमको बचाना था सो तुम बच गए, वरना तुम्हारा मारा जाना भी यकीनी था। खुदा जिसको जिंदा रखना चाहे दुश्मन को अंधा कर देता है। रांझा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रिसीवर रख दिया, दुकान बंद की और घर आ गया। उसको अपने बच जाने की कोई खुशी न थी। गम था तो हीर के डूब जाने का, जिसका असल नाम इसकी सहेली ने बताया था कि सनोबर है। सनोबर का गम मेरे प्यारे भाई रांझा को आज भी है। अब हम इसको इसके असल नाम ज़िशान से ही बुलाते हैं, क्योंकि घर वालों का ख्याल है कि इसको रांझा नाम रास नहीं आया।